عالمی سطح پر سیاحت کا دن منایا جا رہا ہے آج، اور ہم بھی منا رہے ہیں یہاں مکمل گھر میں آپ کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں اب سلمان جاوید صاحب، جو کہ سی او ہیں خیبر انٹرنیشنل اور کنوینر آف FPCCI سینٹرل اسٹینڈنگ کمیٹی کے، اور ساتھ میں ایکس ایم ڈی ہیں PTDC کے. سلمان صاحب، آپ یہ بتائیے گا ہمیں کہ ہر سال یہ جو عالمی سطح پر سیاحت کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے، تو ہر سال اس کی کوئی تھیم بھی رکھی جاتی ہے، اور اس تھیم کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہاں بیبی، ایکچولی جو اقوام متحدہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن، ہوں. جس کا ہیڈ کوارٹر میڈرڈ اسپین میں ہے. اوکے. انہوں نے بہت سال پہلے اقوام متحدہ سے ایک ریزولوشن پاس کروایا تھا کہ 27 ستمبر کو ہر سال ورلڈ ٹورزم ڈے منایا جائے گا، اور اس کا ایک تھیم یا موضوع ہوا کرے گا. صحیح. اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس دن تمام دنیا میں ٹورزم کے فروغ کے لیے بات چیت اور آگہی پیدا کی جائے، اور ساتھ ساتھ اس تھیم پہ یا اس موضوع پہ بھی لوگوں میں رائے عامہ ہموار کی جائے. ٹھیک. تو اس سال کا جو تھیم ہے وہ ہے ٹورزم انویسٹمنٹ ان گرین ٹورزم. اوکے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی سیاحت میں گرین ٹورزم وہ کہلاتا ہے، وہ سیگمنٹ ہے یا وہ حصہ ہے سیاحت کا کہ جس سے کہ ماحول جو ہے اس میں بہتری لانے کے لیے وہ ٹورزم جو ماحول سے دوست ماحول ہو، فرینڈلی جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ فرینڈلی. مثلاً ہمارے جو علاقے ہیں ناردرن ایریا کے، جی. وہ بہت ہی زیادہ ایکو فرینڈلی ہیں کہ وہاں کا جو ماحول ہے صاف ستھرا ہے اور قدرت کے بہت نزدیک ہے. جب میں PIA میں تھا تو جو باہر کے جب ڈیلیگیشن آتے تھے، ہم ان سے کو بریفنگ دیتے تھے، یعنی پاکستان کے سیاحتی پروڈکٹ کے متعلق بتاتے تھے، اور چلتے وقت ان سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیے کہ آپ کو ہمارے یہاں کیا اچھا لگا اور کیا کمزوریاں لگیں. صحیح. تو ایک بہت بڑا برطانیہ کا ڈیلیگیشن آیا تھا، وہاں کے جو ٹریول رائٹرز ہیں بڑے مشہور دنیا کے جید قسم کے. انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ ہمیں آپ کے ہاں دو باتیں نے بہت متاثر کیا. اچھا. ایک تو یہ کہ آپ کے لوگ بہت فرینڈلی ہیں، بہت دوستانہ ان کا کیریکٹر ہے، وہ ہر ایک سے بڑے دوستی کے ساتھ ملتے ہیں. صحیح. اور دوسرا، آپ کے جو ٹورسٹ ایریا ہیں ان کو ابھی سیاحوں نے خراب نہیں کیا ہے، اسپوائل نہیں کیا ہے بالکل. کہ وہاں انہوں نے کوڑا نہیں جمع کیا ہے. وہاں کا جو مقامی کلچر ہے، گرین ٹورزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں جائیں جہاں پہ کہ مقامی جو لوگ ہیں ان کا کلچر جو ہے وہ خراب نہ کیا گیا ہو، اسپوائل نہ کیا گیا ہو. ان کی آداب اور اطوار اور ان کے جو رہن سہن کے طریقے ہیں ان کو باہر سے آنے والے لوگوں نے جوں کا تو رہنے دیا گیا ہو. صحیح. اور ان کی عزت قائم رکھی ہو. اور وہاں پہ جو فضلہ ہے، یعنی جسے ہم انگریزی میں سالڈ ویسٹ کہتے ہیں، اس کو خراب نہ، اس سے وہ علاقہ خراب نہ ہوا ہو. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو پاکستان کو یہ سعادت ہے اللہ کی طرف سے کہ دنیا کے جو 10 بلند ترین چوٹیاں ہیں اس میں سے 7 ہمارے گھر میں ہیں. بے شک. تو بہت سے ماؤنٹینئرز جو آئے ہیں، کوپہما جو آئے ہیں، وہی شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں کوپہمائی کے لیے تو آپ کے پہاڑوں پہ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ، خالی ڈسٹ، خالی بنز، بیئر کی بوتلیں، کوکو کولا کے، 7 اپ کے کھانے خراب جو ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں. تو وہ جا کے یعنی غیر ممالک کے ماؤنٹینئر جن کو کہ پہاڑوں کا ماحول بہت پسند ہے کہ وہ قدرت کے نیچر کے قریب ہے، وہ جا کے وہاں ایک مہم کے طور پہ صفا کرتے ہیں. زبردست. تو ہمارے اپنے لوگ جو ایک کہلاتا ہے ہمارے یہاں لو آلٹیٹیوڈ ٹریکنگ، یعنی وہ کوپہمائی جو کہ نچلی سطح کے پہاڑوں میں ہوتی ہے، ویلیز میں، وہ جا کے وہاں کوڑا چھوڑ کے آتے ہیں. کیمپ جب لگاتے ہیں، کھانے پینے کے خالی ڈبے، چولہے جلا کے. تو ایسا ٹورزم جہاں کے ماحول کو پرزرو کیا گیا ہو، جوں کا توں رکھا گیا ہو. اور اگر ہم وہاں چھوٹے موٹے کوئی ریسٹورانٹ
या रेस्ट हाउस भी बनाते हैं तो उनको बिल्कुल मुकामी रॉ मटेरियल से, मसलन हमारी एक बड़ी मशहूर जिनको अभी बैन अल-अक़वामी एजाज़ भी दी गया है, यास्मीन लारी साहिबा आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने एक सिंध में मॉडल दिया है कि जो यहाँ का घास फूस है उससे और चूने को गीला करके मिला के छोटे छोटे घर बनाए हैं, रेस्टोरेंट बनाए हैं। तो ये मुकामी चीज़ों से वहीं पे आप सियाहत के लिए फ़रोग़ के लिए सामान मुहैया करें, वहाँ के कल्चर को, वहाँ का एम्ब्रॉयडरी को, वहाँ के खानों को प्रमोट करें और सबसे बढ़ के वहाँ साफ सुथरा जो ये अब मैं अभी एक कॉलेज ऑफ टूरिज्म में आज के दिन की मुनासबत से बातचीत करके आया हूँ, तो वहाँ के तालिब इल्मों को मैंने ये नसीहत की कि जब आप होटल्स के मैनेजर बने तो कोशिश करें कि होटल का फजला जो है वो रिसाइकिल हो, यानी ये कि उसका इस्तेमाल कि उसको साफ करके गार्डनिंग के लिए यूज किया जा सके, बजाय उसको कि पाइपों के जरिए समंदर में फेंका जाए जो आजकल हम सी व्यू कराची में कर रहे हैं। और तमाम बीच हमारी गंदी हो रही है, कई किलोमीटर तक आप स्विमिंग भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये ग्रीन टूरिज्म का मकसद ये है कि वो टूरिज्म को फरोग दें जहाँ मुकामी कल्चर, मुकामी माहौल, मुकामी जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वहाँ के पौधे, वहाँ के जंगलात, उनको जूं का तू रखा जाए, वहाँ जाएं जरूर, उनको एंजॉय करें, क्योंकि इंसान को खुद भी अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन से भरपूर फिजा में वो सांस ले। आज कराची है, लाहौर है, नई दिल्ली है, दिल्ली है, वो दुनिया के गलीज तरीन माहौल के शहरों में शामिल हो रहा है, क्योंकि हम अपनी गाड़ियों में से धुआं छोड़ना जो है उसको बंद नहीं करते, हम अपने जो कूड़ा करकट है उसे जलाते हैं, और जो हमारे खेतों का जो जब कटाई होती है उसका जो कूड़ा निकलता है जो उसको जला देते हैं, उससे और धुआं पैदा होता है और तमाम फिजा जो है पंजाब की और जगह की खराब होती है। अभी सिंध को इतनी बड़ी एक टूरिज्म प्रोडक्ट है या बलूचिस्तान को कि एक बड़ी कोस्ट लाइन है, अगर हम उसको साफ सुथरा रखें, उसके माहौल को, उसकी फिजा को, वहाँ जो सी लाइफ है कि मछलियाँ पैदा हों जो खाने के लिए बड़ी अच्छी हैं, पालने के लिए एक्वेरियम बड़े अच्छे हैं, उनको रखें और वहाँ स्विमिंग करें, बच्चों को सिखाएं, जो खेल ऐसे हैं जो समंदर के किनारे खेले जा सकते हैं। तो ये तमाम टूरिज्म जो है, और जो दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली जो कंट्री है वो इस वक्त कोस्टा रिका है, और इसी तरह पैसिफिक ओशन जो है उसके किनारे किनारे जो गल्फ कहलाती है वहां पे उन्होंने प्रिजर्व किया है कि टूरिस्ट जब आए वहाँ स्विम करें, सन बेदिंग करें, स्नॉर्कलिंग करें, कि जो कहते हैं डीप सी स्विमिंग है, जो साफ पानी हो नजर आए, उसमें लोग फिल्में भी बनाते हैं, नीचे तक जाते हैं, कलरफुल। वहाँ आप देखें ना सूरह रहमान में है जिक्र है कि वो रीफ का कि हमने तुम्हें ये दिया, उससे तस्वीरें बनती हैं, कलरफुल शेल निकलते हैं, मोती निकलते हैं। तो उन सबको अगर साफ समंदर का किनारा होगा, कूड़ा करकट नहीं होगा, तो ये सब चीजें होंगी। तो आप उनका जाके वो पहन के शीशे के ग्लासेस होते हैं बड़े बड़े स्विमिंग के, जाके उनका मुशाहिदा कर सकते हैं। डीप सी फिशिंग है, फोटोग्राफी है। तो ये मैंने एक आपके लिए अर्ज कर दिया कि टूरिज्म जो टूरिस्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली जगहों में जाना चाहते हैं उनके लिए ये दिन मनाया जा रहा है कि आगाही पैदा हो कि ऐसी जगहें जाएं, फिर उनको कायम और दायम रखें उन्हीं सूरतों में कि जिस तरह नेचर ने, अल्लाह ताला ने हमको उनको दिया है। सही, ज़बरदस्त, बिल्कुल बहुत सही बात की आपने। बेशक जब हम जहाँ पे जाते हैं, जिस जगह पे जाते हैं, तो हम बेसिकली अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए जाते हैं। जब हम सयाहत पे जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो अगर हम ही उन जगहों को जो है वो टॉक्सिसिटी फैला देंगे, गंदगी फैला देंगे, तो फिर हम वहाँ जाके किस तरह से अपने आप को जो है वो डिटॉक्सिफाई कर सकेंगे। और वो आपको खुशामदीद भी मुकामी आबादी नहीं कहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो भी इस चीज़ से नाराज़ होंगे अगर आप जाके उनके घर को, उनकी जगह को जो है वो गंदा करके आएंगे। सलमान जावेद साहब, ये बताइएगा हमें कि पाकिस्तान में सयाहत का मुस्तकबिल क्या है?
देखिए पाकिस्तान में सेहत का तो मुस्तकबिल उसी तरह का है जैसे पाकिस्तान का अपना मुस्तकबिल है, तो वो उसी से रिलेटेड है। कोई हम अलग एक दूसरे सैयारे पे तो नहीं जा सकते या आ सकते। लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह का करम है कि टूरिज्म के बहुत से सेगमेंट्स हैं। जो मार्केटिंग में एक लफ्ज़ होता है ना सेगमेंट, उसमें कल्चरल टूरिज्म है, एको टूरिज्म जो मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद हिस्टोरिकल है, मिस्टिक है जिसमें सूफीज़्म आ जाता है, जिसमें रिलीजियस टूरिज्म है, वो एक अलग सेगमेंट है हमारे यहाँ। उसमें बहुत है कि ये जो दरगाहें हैं, बहुत सी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ की है, यहाँ भी है, गंज की है। फिर हिंदुओं का यहाँ पे आपको ताज्जुब होगा कि कई बड़े बड़े बहुत ही ज्यादा सेक्रेड मंदिर हैं। सिखों का बहुत बड़ा जो उनका है, बुद्धिस्ट का तो रिलीजियस टूरिज्म टेक्सिला में देख लें आप, बहुत ज्यादा जो उनकी स्वाद के पास एक जगह है तख्तबाई, जो कहा जाता है जिस तरह हमारे यहाँ मुख्तलिफ फ़िरक़े हैं, उनके यहाँ भी फ़िरक़े हैं सिखों के। तो एक फ़िरक़े का ये यकीन है कि बुद्धा तख्तबाई में पैदा हुए थे, एक लोटस फूल के अंदर। तो ये तो उनका एक तरह से मक्का है। तो हमारे यहाँ तो हर किस्म के, और वो ज़रा नम हो तो बड़ी ज़रख़ेज़ है, ये साक़ी, ये मैंने शायद गलत पढ़ दिया, नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। लेकिन जो ज़रूरत है कि बुनियादी ढांचा, जिसको हम अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, कि आम आदमी के लिए होटल्स या मोटेल्स या रेस्टोरेंट, अगर डे टूरिज्म फरोग देना है तो रेस्टोरेंट, और दिन के कई दिन के हैं, और अच्छी रोड्स हों। सबसे पहले टूरिज्म के लिए ज़रूरी है वो कि अप्रोचिंग रोड सही हो, फिर उन पे जो गाड़ियाँ चलती हैं वो सेफ हों। एक दफ़ा एक जापानीज ग्रुप आया और वो गिर गया और वो मर गए, कोई 8-10, ये कोई 30 साल पुरानी बात है। तो जब हम टूरिज्म के फरोग के लिए जापान जाते थे, पहला सवाल वो ये करते थे कि जी आपकी ट्रांसपोर्ट कितनी रोड सेफ है। सही। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर ये कि जो जगहें आप बना रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कब्रें जहाँ वो ठहरते हैं, जो बाथरूम्स हैं जहाँ वो नहाते हैं या जो खाना खाते हैं, वो हाइजीनिकली बहुत सेफ हो। और इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक आगाही हो लोगों में, मुलाजमीन में, लोगों में। तो क्या कहते हैं, ये बहुत पोटेंशियल है और पिछले चंद सालों में इस पे बहुत काम हुआ है और हम अराइवल्स बढ़ रहे हैं। और सबसे बल्कि ये कि आपकी कंट्री का एक बहुत पॉजिटिव इमेज जाए कि जब टूरिस्ट उतरे उसको खुशामदेद कहा जाए और वो सेफ रहे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये। बिल्कुल। और इसका हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। तो अगर हम कोशिश करें और हम लोगों को खुशामदेद कहना और उनको मौके फराहम करना, उनसे घुल मिल जाना, तो वो जो है इस बहुत पोटेंशियल है और इंशाल्लाह ये ग्रो होगा। इंशाल्लाह ताला। सलमान जावेद साहब थे हमारे साथ और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की कि पाकिस्तान में बेतहाशा पोटेंशियल है। बात सारी ये है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम अच्छा और हम एफएम इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है क्योंकि इसकी पहुंच हर जगह है। जी बिल्कुल। अनीला रज़ाक, फायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद थे और आप सुन रहे थे आपका फेवरेट शो मुकम्मल घर। हम सेलिब्रेट कर रहे थे आलमी सतह पर सयाहत का दिन आज। कल इंशाल्लाह ताला कुछ नए सेगमेंट्स के साथ, कुछ नए गेस्ट के साथ आपके सामने दोबारा से हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।